right? We all know it's our custom. So may I request you all kindly join your hands and chant Omkaram 3 times. Sai Ram. Sai Ram once again, my dear students. We have completed chapter number 5, that is separation of substances, in which we learned that most of the substances around us are mixtures and the constituents are needed to be separated from a mixture because we want to take out some useful components, we want to throw out some harmful components, we want to take out some useful and which is pure also because a mixture is a combination of pure substances. So we need to take out that. Who is spelling is wrong, beta? Garik? Garik? सर वो अतिशा ने मेरी स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी इसलिए Now stop all these things, beta. Stop all these things. Now, so, and we learnt about different methods of separation, right? And we discussed the chapter and questions also, right? Now it's your turn. You have to revise in a proper way, learn the definition of all the methods of separation and where we will use it, that also identify. Today we will start chapter number 6, that is changes around us. Okay, so let me present my screen so that we are able to get something, right? So this is your chapter. Garik, can you see it? यस सर Changes around us. Yes, sir. Huh? The first part says it's fun. Everyone wants to change something. Just now, Garik has changed his profile picture. He has added a very cute picture of his childhood. Right, beta? So change is always taking place around us. And what if you are given the power to change something? Right, Garik? अगर आपको अभी Sir, what are changes? changes are alterations, some modifications that we make, right? Or it happens naturally also sometimes, that is called change. Some alterations. Suppose you are given a sheet of paper and you start writing with the help of a pencil one long essay on that. So what you have done? You have made a change on the paper. नहीं? पेपर पे आपने कुछ चेंज ला दिया, ठीक है बेटा? So something alteration or some modifications that we do, that is called change. So suppose for a fun purpose you are given magical power. Then what do magician do? मैजिक देखा होगा आपने, कितने लोगों ने देखा है? एक आध कोई बोलो। आरुष, मैजिक देखा है? मैंने मैजिक शो एक आध देखा है? सर मैंने हमारे पुराने स्कूल में देखा था। ऑडिटोरियम में एक जादूगर आए थे कोलकाता से। ठीक है, जादूगर आते हैं, वो दिखाते हैं, तो क्या करते हैं वो? He changes one thing into another, नहीं? आपका रुमाल लेंगे, रुमाल को ऐसे झुकाएंगे और रुमाल चिड़िया बन के उड़ जाएगी। मगर remember, these all are only tricks. It is never possible that a handkerchief will become a bird. Not possible, beta. All are tricks. Okay? They all are tricks. Other thing is hidden. सर सबसे ज्यादा सर कोई जादूगर ब्लड खा लेते हैं, ट्रिक होती है। One beta. Actually, the movement of their hand or finger is very fast, and there is a limitation of our looking, and they also use music and light to deceive us, right? So
remember here, suppose सर you are, उनके कोर्ट में उनकी सबसे स्पेशल थिंग रहती है okay बेटा, सर, some वो magical कोर्ट ही powers. उनके जादू के लिए मेन रहता है। हाँ, suppose you are given magical powers to change your surroundings. So what would you like to do first? Gorik? सर मैं पोल्यूशन कम करना चाहूंगा। Okay, very good. It means you really are an awakened citizen. You have sensitivity towards the environment. You will change the pollution level. Very good. Anybody else? सर मैं उन लोगों की मदद करूंगा One जो by इतना one. पैसे नहीं है और पहले नाम जो बोलो। खाना नहीं खा पाते हैं। सर मैं गरीब लोगों की सर मदद आयुष जैन। करूंगा। Okay, बेटा. सर मैं गरीबों की मदद करूंगा जो अच्छे से सो नहीं पाते और खाना नहीं Okay, पाते। अच्छा. You will change the livelihood of those people who could not get food for both the time at least. Very good. But this doesn't happen actually because we are not given magical powers, but we can still change a few things around us. See that line which I'm underlining. But we can still change a few things around us. Perhaps many things. Right? Without magic, we can do it. Suppose if I give you a balloon, right? What will you do? सर हम उन्हें उसमें हवा फुलाएंगे। भरेंगे। आप उसमें हवा भरोगे और साइज बड़ा कर दोगे। सर उसमें हवा तो चेंज आया कि जिससे नहीं? वो चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ कुछ? सर, क्या चेंज नहीं, आया सर, उसमें में? सर वो पतला था सर, वो बहुत या इट्स सर वो साइज है छोटे से चेंज, बड़ा हो साइज गया। बड़ी हो गई है ना, साइज बड़ी हो गई उसकी। तो दिस वे देयर इज सेवरल चेंजेस दैट टेक Yes, प्लेस sir. अराउंड अस, right? Let me begin my PPT with you, right, so that we can understand the chapter very well from current slide. Now can you see my PPT, Gorik? यस सर। यस Yeah. सर। Yes, sir. Om Yes, Shri sir. Sai Ram. Yes. Changes around us. Changes around us. Many changes are taking place around us. Right? Some changes we notice, some changes we don't notice, but they are taking place. Right? आप जब अपने घर से स्कूल आते हो तो ऑटो में बैठ के आते हो या अपनी कार में बैठ के आते हो या बाइसिकल पे आते हो, जैसे भी आते हो, और आप रोड के दोनों तरफ कितने सारे पेड़ को देखते आते हो। हाँ सुनो बेटा मेरी बात पहले, फिर आंसर क्वेश्चन पूछे तो आंसर देना। राइट बेटा? अब उन पेड़ों को देखते हो आप, तो कई बार देयर आर नो फ्लावर्स, बट समटाइम्स यू सी देयर आर फ्लावर्स ऑन द ट्री। नहीं, पूरे पेड़ फूलों से लग जाते हैं। यू मे फाइंड समटाइम्स फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, राइट? सो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। सी, we also notice leaves fall from trees, change color and dry out. देखा होगा आपने, पेड़ से पत्ते नीचे गिरते हैं, उनके कलर बदल जाते हैं। ऐसे हरे होते हैं पत्ते जब पेड़ में लगे होते हैं, नीचे गिरते हैं, धीरे धीरे सूख जाते हैं, और सूख कर फिर क्या होते हैं? डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। नहीं बेटा? सो मेनी चेंजेस। द फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं, एंड दे विदर अवे, क्या होते हैं? फिर वो मुरझा जाते हैं। आपने नहीं तोड़ा फिर भी पेड़ उस पौधे में रहते हुए भी क्या होता है? वो फूल फिर धीरे धीरे मुरझा जाता है। आवर नेल्स ग्रो, देखा है आपने? आपके नाखून बड़े होते हैं, आपको काटना पड़ता है बीच बीच में, यस सर। है ना? हेयर ग्रोज, कटिंग लेने में। यू ग्रो टॉलर, Yes, sir. आप भी बड़े हो रहे हैं ना? आपकी भी हाइट बढ़ रही है, नॉट ओनली फिजिकली, यस सर। मेंटली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो। अभी आप ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जब एक बचपन था छोटा, जब बहुत छोटे थे तो कुछ भी हो आपको परवाह नहीं होती थी। अगर कोई बगल में रोता होता था आपको कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी अगर आपके बगल का कोई रोना शुरू करे तो आप तुरंत जाओगे, ओह व्हाट हैपेंड टू यू, क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है ना? आपको भी थोड़ा सा रोना आ जाता है, आता है या नहीं आता? यस सर। अगर कोई सामने सर आता वाला है। दुख में हो तो हमें भी दुख होता है ना बेटा? इसको बोलते हैं एम्पैथी। दो चीजें हैं, एक सिंपैथी, एक एम्पैथी होता है ना? मैं लिखता हूँ इस पर, कैनवास पे लिखता हूँ थोड़ा, है ना? और दोनों का डिफरेंस बताना आप। ये देखो, दो वर्ड में ले रहा हूँ। एक वर्ड का नाम है, देखो, SYMPATHY। सर आपके पेन की जो एक्शन है वो लेट आ रही है।
दिख रहा है बेटा? और एक वर्ड है यस सर दिख रहा EMPATHY, एम्पैथी। दोनों का डिफरेंस समझना अच्छे से, इंग्लिश वाला क्लास में पूछना मैम से, ठीक है? सिंपैथी एंड एम्पैथी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। सिंपैथी का मतलब होता है किसी दूसरे को देख करके दुखी होना, और एम्पैथी का मतलब होता है ठीक वैसा ही सिचुएशन में जाकर के फील करना, है ना? सो यू ऑल आर एट प्रेजेंट growing taller, not only physically but also emotionally also, है ना? अच्छा, योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, आपकी वजन बढ़ता जा रहा होगा जैसे बड़े हो रहे हैं, तो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? गौरिक? यस सर हो रहा है। यस है। बेटा, यस सर हो एक्चुअली चेंजेस आए हैं चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड सर, अस जैसे ऑल हमारी द टाइम। मूछें बढ़ने लगती हैं। हर क्षण बेटा, एवरी मोमेंट देयर इज ए चेंज, है ना? एक्चुअली नथिंग इज परमानेंट बट अ चेंज, each and everything. देखो, everything is made up of atoms and molecules, and atoms and molecules inside them changes are also taking place. So every time a change is taking place, let us learn some of the changes, है ना, in this class, and many you will learn in your higher classes. Okay, so shall we begin? You can see here. What does this picture indicate? You can see this beaker. Yes, beta. सर आपने जो पिछली क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर्स नहीं बताए थे। तो आप नहीं कर रहे हैं क्या? सब बताया हुआ है बेटा उसमें, आपको मैंने दिया है। अगर प्रॉब्लम है तो बोलना, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे सारा आंसर भी। आंसर लिखा हुआ बेटा उसमें, पीपीटी में ही मिल जाएगा ढूंढेंगे तो। या सर जो ये रश्मि के आमने दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। दिखा गौरिक? यस सर अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। देखो बेटा, सी दिस पिक्चर, फिगर देखो आप। इन दिस बीकर वी आर हैविंग आइस क्यूब्स, and this ice cube has disappeared in this another beaker. So what has happened to the ice? Arush? Sir, ice melt and sir, ice melt and Very good. Ice has been melted and it has converted into water. Ice had changed into water. Right, beta? So changes. सर इसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। हाँ, ये रिवर्सिबल भी है। If you will put this water in your deep freezer, it will again convert into ice. Okay, बेटा? So changes involve different kinds of alteration. अभी पूछा था आपने, अभी आरुष ने पूछा था what is the meaning of change? So you can write down changes involve different kinds of alterations in the things around us. हमारे आस पास की चीजों में जो हम बदलाव कर देते हैं या कुछ बदलाव नेचुरली हो जाता है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता, बट नेचुरल हैपेंस। अब मान लो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी अचानक से अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा? द अर्थ विल स्टार्ट शेकिंग। सर धरती सर अर्थ में क्रैक भी आ जाएंगे। सर धरती हिलने लग जाएगी, घर पे आ जाएंगे, बहुत सारे बिल्डिंग सर टू टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने टकराने से अर्थक्वेक आता है। वेरी गुड, प्लेट टेक्टोनिक से एक्सपेंड करते हैं इसको। सो व्हाट आर चेंजेज? चेंजेज आर अल्टरेशंस दैट टेक्स प्लेस इन द थिंग्स अराउंड अस। ओके बेटा, सम ऑफ द चेंजेज वी नोटिस एवरी डे। आपके घर में देखा होगा आपने, आपकी मम्मा शी फॉर्म्स कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपके घर में दूध से दही बनाते हैं, नहीं? दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हैं, पूरा का पूरा दूध 2-4-5 घंटे में कर्ड बन जाता है। तो चेंज आया कि नहीं आया? मिल्क का टेस्ट अलग होता है, खट्टा बिल्कुल नहीं होता, बट कर्ड इज sour in taste because it contains an acid. सर खट्टा होता है। हाँ, इसमें एसिड आते हैं। कौन सा एसिड होते हैं बताएगा? Which acid is present in curd? सिट्रिक एसिड। नहीं बेटा, wrong. Think again. सर विनेगर।
कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड, LACTIC, Sir. लैक्टिक एसिड बेटा. ओके, नाउ एवरी डे, है ना, विदाउट दिस वी कैनॉट सर्वाइव. फूड इज कुक्ड एट आवर होम. कुकिंग ऑफ फूड, डज सम चेंज टेक प्लेस और नॉट? अब व्हीट ग्रेन को देखो कहाँ कैसा होता है. रोटियां हमारी देखो, व्हीट ग्रेन को पहले हम साफ सफाई करते हैं, देट इज ग्राइंडेड टू गेट व्हीट फ्लोर, आटा बनता है. आटे को फिर क्या करते हैं, पानी डाल के उसको, है ना, गूंथते हैं. देन इट बिकम्स अ डो, DOUGH, डो ऑफ द व्हीट फ्लोर. देन दैट डो इज टेकन अ स्मॉल अमाउंट, है ना, मेड अ ball like structure. Then it is flattened using a pastry roller and pastry board. Then it becomes roti, and still then this is baked on the pan, hot pan, garam taवे पर इसको रख देते हैं. Then it becomes solen and then we enjoy that roti. So cooking of food, lots of changes take place during cooking of food also. Isn't बेटा? नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. अब आप रोटी पकानी है, चावल पकाना है, तो आपने देखा होगा आपके घर में एक सिलेंडर होगा, LPG गैस भरी रहती है उसमें, है ना बेटा, LPG gas cylinder, and that gas comes into your gas stove, and the gas stove, that gas is burnt, then there is a flame, and that on flame we heat water or we put our pan, it gets heated, then we put our roti and the bread etc are made. नहीं बेटा, तो कितने चेंजेस हो रहे हैं आपके. LPG गैस जो सिलेंडर में है वहां से वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म लिक्विफाई होता है सिलेंडर के अंदर. आप सिलेंडर को ऐसे हिला के देखना, मम्मी से पूछ कर, अपने मन से नहीं. सिलेंडर जो थोड़ा यूज हो गया हो, है ना, बिल्कुल न्यू वाला नहीं दिखेगा आपको ज्यादा, थोड़ा सिलेंडर गैस यूज हो गया हो, उसको ऐसे सेक करो, आपको पानी ऐसा अंदर आवाज आएगी, बिकॉज इट इज इन लिक्विड स्टेट. Yes, sir. लिक्विड स्टेट में होता है, वो अंडर प्रेशर होता है. जब हम नॉब खोलते हैं, है ना, वहां पर एक नॉब होता होगा, देखा होगा आपने, है ना, एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, इसकी भाषा में रेगुलेटर, है ना. रेगुलेटर को जब ऑन करते हैं या आपकी मम्मी ऑन करती हैं, तो जो गैस है लिक्विड स्टेट में, दैट कन्वर्ट्स इनटू गैस स्टेट, वेपर बन जाता है, गैस बन जाता है, और पाइप से होता हुआ गैस इट कम्स इनटू योर गैस स्टोव. एंड स्टोव में जब हम नास्टिक जलाते हैं या लाइटर जलाते हैं, देन इट कैचेज फायर एंड इट बर्न्स देयर. So many changes taking place. Liquid state to gaseous state, and then gases to burning, and after burning it will give you heat, light. No, so burning of fuels, जो गेल में रहते हैं उनके यहाँ डायरेक्ट गैस आती है, PNG गैस आती है ना, पाइप्ड नेचुरल गैस आती है उनके यहाँ, है ना, जैसे गौरव के घर में आती है, वो दैट इज PNG है बेटा. और जो लोग साडा में रहते हैं, में राहुगढ़ में रहते हैं, उनके यहाँ LPG गैस होगा, सिलेंडर में LPG गैस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG? Liquid petroleum gas. पेट्रोलियम Sir, liquid petroleum gas. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना. PG तो सब जगह रहेगा, उसके आगे L. अब हमारे यहाँ गेल में जो गैस आती है पाइप से आती है, तो उसका नाम होगा PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस, राइट बेटा. देन ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स. आप लोग सोचते हो, कभी सोचा नहीं होगा कि मम्मा कपड़ा धो देने के बाद जब धूप में डालती हैं तो उसका पानी जाता कहाँ है, कभी सोचा? एवापोरेशन. हाँ, इवेपोरेट होकर के पानी जो लिक्विड था, दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर एंड इट गोज इनटू द एयर. ओके बेटा. ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, दैट इज आल्सो सम चेंज टेकिंग प्लेस. रस्टिंग ऑफ आयरन. कई बार आपकी चाकू वगैरह अगर खुले में रह गई या आपने मिट्टी में फेंक दिया कोई लोहे का सामान, तो उसके ऊपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है, जिसको मतलब जंग बोलते हैं हिंदी में, है. इट गेट्स रस्टेड, जंग लग जाती है उसमें. और ध्यान रखो बेटा, जंग लगे हुए कोई भी ब्लेड से या चाकू से कभी भी खेलना नहीं. अगर उससे कट कहीं लगा, आपको कहीं उंगली वगैरह कट गई, तो फिर आपको टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, है ना. टेटनस एक Yes, sir. बीमारी Yes, बेटा, उसका हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS. हाँ बेटा, बस एक ही बात है ऐसे. हाँ बेटा, जंग कोई केमिकल होता है क्या जिससे वो अगर कट जाए तो इंजेक्शन देना पड़ता है? जंग जो होता है वो ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है. एक ऑक्साइड लेयर जंग में डिपॉजिट होता है आयरन के ऊपर में, और जब हमारा कहीं कट जाता है और वो कांटेक्ट में आता है, जर्म्स एंटर करते हैं हमारे, एंड दैट बिकम्स
हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, क्योंकि वहां पर सेप्टिक हो जाता है, जहां से कटता है ना जंग लगे चाकू से या कुछ ब्लेड वगैरह से, तो वहां पर सेप्टिक हो जाता है, वहां पर पक जाता है, पस निकलने लगता है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है ना, तो कई बार उंगली काटनी पड़ती है, और अल्टीमेटली तो बहुत बड़ा डैमेज होता है बेटा, फिर कोई इसका इलाज ही नहीं दुनिया में है, अगर इसने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर दिया तो, है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ऐसी जंग लगे हुए चीजों से खेलना नहीं चाहिए, खेला भी तो ध्यान रखो, और अगर कट जाए तो अपने पेरेंट्स को बताना है बेटा। वैसे ऑल ऑफ यू आर वैक्सीनेटेड, आप सबको इसकी वैक्सीन लगी हुई है, बट फिर भी एज ए प्रिकॉशन हम जाते हैं, एक इंजेक्शन मिलता है, थोड़ा सा इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर यहाँ पर, है ना, टेटवैक का इंजेक्शन आता है, एंड एंटी टेटनस सीरम होता है वो। उसके बाद हमारा 6 महीना तक दवाइयों पर डिपेंड करता है, डॉक्टर से पूछ लेना लगाने के बाद कि ये कितने समय तक हमें सेफ रखेगा, है ना। जस्ट लाइक वैक्सीन है बेटा वो, लेकिन ये वैक्सीन हमें पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है ना। तो उसे 6 मंथ वाली हाँ, होती है। 6 मंथ की होती है, गुड। तो 6 मंथ वाली लगी है, सर 6 मंथ तक आप फिर कोई दिक्कत नहीं है, 6 मंथ तक, लेकिन याद रखना होगा आपको कि हमें कब लगाता है, और आगे अगर 6 मंथ के बाद फिर कटता छटता है तो फिर हमें लगवा लेना चाहिए बेटा। एंड ऐसे भी सर हम मुझे कहते हैं, सुनो सर बेटा, मुझे तो वो लगती ही रहती है सर, मुझे कुछ इफेक्ट ही नहीं होता आप कटपट सर, और करते हैं। मैंने कम से कम 3 साल से इंजेक्शन नहीं लगवाया। अच्छा बेटा, गुड। ऐसे आप लोग छोटे बच्चे हो ना, आपके घर में वैक्सीन कार्ड होगी, मम्मी से पूछोगे तो उसमें एंटी टेटनस इंजेक्शन आपको वैक्सीन लगे हुए हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना बेटा, तो फिर हमें दोबारा ध्यान रखना चाहिए, है ना। आप लोग तो सब बहुत वेल प्रोटेक्टेड चाइल्ड हो, अभी देख रहे हो ना, ये कोविड जो सिचुएशन चल रही है, इसमें आप सब बच्चे काफी सेफ हो एक तरह से, फिर भी प्रिकॉशन तो लेना है बेटा हमें, राइट। प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि आपको जो BCG का वैक्सीन लगी हुई आपको है, आप पता करना अपने अपने घरों में, है ना, आपके वैक्सीन कार्ड होंगे छोटे छोटे, घर में पड़ा होगा, मम्मी से लेकर देखना, आपको BCG बैसिलस कैमेटिग्योरिन इसका इंजेक्शन लगा है, आपको वैक्सीन लगी हुई है। ये वैक्सीन हमें टेटनस से बचाती है, राइट। तो लेकिन ये साथ में आजकल रिसर्च चल रही है, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस, है ना। और इस पर रिसर्च अभी ऑन है बेटा, नॉट कंफर्म नहीं है, बट स्टिल, है ना, समहाउ यू ऑल आर सेफ to some extent, not fully 100%, unless until we get a vaccine, 100% vaccine for coronavirus. Okay beta, so rusting of iron, that is also a change. Iron object changes into oxide of iron, which is a loss beta, iron is lost in that process. So many changes we notice in our daily life, right. Now let us go ahead. A substance undergoes a change to form a new substance only when certain agents like heat, light, electricity or force etc. are applied to it. अब देखो, कुछ चीज, कोई चीज है, वो अपने आप तो किसी दूसरे में नहीं बदलेगी, सम चेंजेस, सम एजेंट्स आर नीडेड। अब जैसे तुम्हारे पास एक टूथपेस्ट का बढ़िया सा आपने बाजार से खरीद के लाया, टूथपेस्ट का पूरा ट्यूब है, अब उस ट्यूब को आप टेबल पे रख दो, तो क्या विल, अच्छा उसका कवर खोल दो, है ना, उसका जो कैप है कैप को रिमूव कर दो, विल द पेस्ट स्टार्ट कमिंग आउट इटसेल्फ? करेक्ट, नो सर, नहीं नो आए। सर, नो लेकिन सर, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा प्रेस कर दिया, अपने उंगली से फोर्स लगा दिया उसके ऊपर में, तो क्या होगा, पेस्ट विल बाहर आ कम, जाएगा। और साथ में और पेस्ट आ क्या हो जाएगा। जाएगा, साथ में और क्या चेंज आएगा, ट्यूब में कोई चेंज आएगा, ट्यूब, यस सर, या सर ट्यूब यस में भी सर, चेंज आएगा। हाँ, इट इज मोस्टली सिलिंड्रिकल होता है, बट व्हेन यू विल अप्लाई फोर्स इट विल बिकम फ्लैट देयर, वहां फ्लैट हो जाएगा आपका, नहीं बेटा। अच्छा, दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, यस सुबह सर, सुबह टूथपेस्ट निकालने वालों को देखना, सर कुछ लोग टूथपेस्ट के बीच में दबा देते हैं और कुछ लोग नीचे दबाते हैं, है ना। आप लोग घर में ऑब्जर्व करना, यस सर, टूथपेस्ट लेने वाले आपके घर में जितने लोग ब्रश करते हैं ना, कुछ लोग बीच में दबा के ले लेंगे, फटाफट बंद कर देंगे, और कुछ लोग अच्छे से नीचे से लेंगे, नीचे दबाएंगे और उसका शेप अच्छे से मेंटेन कर देंगे, फिर पेस्ट लेंगे और अच्छे से रखेंगे, है ना। खैर वो तो ऐसे बस मजाक के लिए बोल रहा हूँ बेटा, राइट बेटा। सो दीवारों में से हाँ, चेंज न्यू सब्सटेंस बन जाए कुछ, उसके लिए जरूरी है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स एक्सेट्रा टू बी अप्लाइड ऑन इट। नाउ बेटा, जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे आसपास, अभी दिखाया मैंने इतने सारे चेंजेस,
है ना, formation of curd from milk, cooking of food, burning of fuels, drying of cloths, rusting of iron, इन सब से और भी हैं, they are classified into two groups. इनमें से कुछ चेंज ऐसे हैं बेटा which can be reversed. जैसे आटा गूंद लिया और आटे का डो बनाया, लिसन बेटा एक मिनट, आटे का डो बना लिया, रोटी बनाई, लेकिन उसको कुक नहीं किया, बेक नहीं किया अभी, तो दोबारा हम उसको मिटा करके फिर से वापस हम दूसरी रोटी बना सकते हैं। लेकिन अगर एक बार कुक कर दिया आपने, देन यू कैन नॉट चेंज इट। हाँ बोलो अब आरुष। सर अभी तक तो कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, तो मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं? मरीज ठीक हो रहे बेटा, सुनो ये इन्फेक्शन है बेटा। हाँ बेटा लेट मी स्पीक। देखो बेटा, हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी मीन्स रेजिस्टेंस पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। बीमारियों से लड़ने की हमारे बॉडी के अंदर एक क्षमता होती है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है बेटा, तो हमारी जो अपनी इम्यूनिटी है वो फाइट करके और हम अच्छे हो रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही है, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें, मेंटेन रखें। हम गंदा संदा ना खाएं, पानी अच्छा पिए, है ना बेटा, बैलेंस डाइट लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। योगा एंड प्राणायाम, दिस टू आर वेरी वेरी यूजफुल। रोज योगा करता हूँ सर काढ़ा भी पियो और च्यवनप्राश खाना चाहिए। हाँ, तो इससे क्या होता है बेटा, सर मैं भी हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो वेस्ट बनता है बॉडी के अंदर में, दैट कम्स आउट रेगुलरली। एंड ऑक्सीजन, देखो कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है पता है? उस पेशेंट को होती है जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाता है बेटा। क्योंकि जो कोरोना वायरस है इट अफेक्ट्स अवर लंग्स। लंग्स में हल्दी का दूध पीने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ब्लड में एक्सचेंज होता है ना, उसको अल्वियोला बोलते हैं। अल्वियोला को डैमेज करता है कोरोना वायरस। तो इस तरह से जो बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई है, जहां जहां ऑक्सीजन जाएगा बेटा, वहां वहां आपको एनर्जी आपको मिल सकती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई उसमें दिक्कत आती है कोरोना पेशेंट्स में। तो अगर हम प्रॉपरली बैलेंस डाइट लेते हैं, है ना, we do exercises, we do yoga and pranayam, then we can fight against many diseases itself, है ना बेटा? Okay, so some of the changes that can be reversed, whereas others cannot be reversed, है ना बेटा? कुछ को हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब जैसे बलून लिया, बलून में हवा डाला, वो बड़ा हो गया, वापस हवा को निकल जाना तो मुंह से, वापस बलून रह जाएगी, ये रिवर्स हो गई। लेकिन उसी बलून को आपने फुलाया, टाई द माउथ, माउथ में कोई धागा बांध दो, अब एक पिन लो, पिन लेकर उसमें प्रिक कर दो, होल कर दो, अगेन एयर विल कम आउट, बट दूसरी बार फुलाओ उसको, अब वो फूलेगा ही नहीं बलून आपका। अब ये रिवर्स नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है बेटा? सो ऑल द चेंजेज अराउंड अस, आपके एनसीईआरटी बुक में ये दो चीजों पर ही फोकस है। Can be classified into two groups, that is reversible, which can be reversed, and irreversible, which cannot be reversed. We cannot get back the same matter, the same material. सर irreversible का मैं एक बताऊं क्या? Irreversible. सर चपाती। हाँ, चपाती बना दिया जब बेक कर दिया, तब बेक करने के बाद irreversible हो जाएगा, उसके पहले तक रिवर्सिबल होता है ना? 2 से लेकर रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन वापस आयरन नहीं मिलेगा। चलिए, सो लेट अस नो मोर अबाउट दीज टू बेटा, है ना? हाँ, यू मे नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल चेंज, अ चेंज व्हिच कैन बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। हम ओरिजिनल सब्सटेंस को दोबारा ला सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रीवियस फॉर्म ऑफ मैटर। द चेंज इन विच previous form of matter can be obtained back is called reversible change. No new substance is formed, याद रखो, लेकिन पुराना जैसा था मैटर वैसा ही मिल जाना चाहिए, that is reversible change। जैसे अभी आपने बताया था कि ice change into water and water will be back in change to ice, so the melting of ice is a reversible change, right बेटा? मेल्ट हो रही है आइस, मेल्ट होकर वाटर बन रहा है, और अगर वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो वापस आइस मिलेगा हमें। सो मेल्टिंग ऑफ आइस मींस इट इज चेंजिंग इनटू वाटर, इज अ रिवर्सिबल चेंज।
Now you can see here how does ice change into water? Because of melting. For melting you have to provide small amount of heat. Either you take in your hand, तो आपकी बॉडी की जो पाम की जो हीट एनर्जी है उससे वो मेल्ट होकर पानी बन जाएगा, और यू स्टार्ट हीटिंग इट, राइट बेटा, एंड वाटर व्हेन फ्रीजिंग, व्हेन कूल डाउन, इट विल बिकम आइस विच इज सॉलिड, एंड दिस इज लिक्विड. पढ़ा था हमने ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, है ना बेटा. So ice to water or water to ice, it is a reversible change. Okay. Now another change is irreversible, which cannot be reversed. A change which cannot be reversed to form the original substance. जो original substance हमने लिया था वो वापस हमें नहीं मिलेगा, then that is called an irreversible change. है ना बेटा. अब देख सकते हो फिगर में, burning piece of paper. अब piece of paper को आग लगा दिया. Now after burning it will give you heat, सर मिरर, smoke and black residue कार्बन बच जाएगा जलने के बाद आपका. Can you get back? सर मिरर भी, है ना बेटा. नहीं मिलेगा पेपर. सर मिरर के साथ भी होता है सर. हाँ किसमें? यस सर मिरर. सर वो वापस रेत नहीं बनता. मिरर बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर मिरर के साथ नहीं होता. नहीं, मिरर में तो हमारा इमेज दिखता है, हट जाते हैं तो इमेज हट जाता है. नो सर वो मिरर में, सर वो कहना चाह रहा है कि हम मिरर को वापस सेट नहीं, एक बोलो रेत नहीं बनता. मिरर में हमारा इमेज बनता है बेटा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना. इन मिरर, सर जो मिरर है वो वापस से रेत नहीं बनता. हाँ, मिरर तो देखो ग्लास की सीट है, उसके पीछे सिल्वर मिरर पेंट लगा देते हैं, और इसके जब लाइट पड़ती है मिरर के ऊपर तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से हमारा इमेज बनता है मिरर के अंदर में, रिफ्लेक्शन होकर आपको दिखता है. ठीक है, आगे देखिए. बर्निंग पिस ऑफ पेपर, इट्स एन इरिवर्सिबल चेंज. अब दूसरा देखो, आप लोग में से कई लोगों को ऐसा हुआ होगा, पैर में या हाथ में कहीं पे, या किसी को देखा होगा और आप तुरंत उस पर लिखते हो गेट वेल सून, है ना. आप अच्छे संदेश लिखते हो उसके हाथ के ऊपर में, है ना. क्या है ये, बता सकते हो? फरीक सर जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है ये लगाते हैं प्लास्टर. गुड. कई बार हम खेलते कूदते में बहुत ज्यादा जोर लगा देते हैं, या कई बार हमारे अनबैलेंस थी में हमारे हाथ या पैर पहुंच जाता है, या गिर जाते हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार. देन और जो बोन होती है अंदर की, दैट गेट्स ब्रोकन. तो उस बोन को सहारा देना पड़ता है सही पोजीशन में रखने के लिए. बोन को पोजीशन में ला के, और वो इधर उधर ना हो जाए वापस, एक पट्टी लगा करके उसमें पट्टी में मिलाते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस. हाँ, शॉर्ट फॉर्म है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. सर अभी मेरी मम्मी की दुकान बन रही है, इसलिए मेरी दुकान में रखी POP. हाँ बेटा, ये POP और भी बहुत सारे काम में आती है. कई बार हम वॉल के ऊपर में पहले इसको POP लगाते हैं, बाद में पेंट करते हैं, तो बड़ा अच्छा पेंट आता है. सर मेरी मम्मी ने POP का रोज बनाया है. हाँ बेटा, तो POP से बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, मूर्तियां बनती है, मगर आजकल इसको बंद करना चाहिए क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता बेटा, नेचर में पोल्यूशन करता है. तो आजकल जो मूर्तियां बनने लगी है उसमें अब अवॉइड करते हैं हम. मिट्टी का बनाया अच्छा है, क्योंकि तालाब वगैरह में लंबे समय तक केमिकल पड़ा रहता है. फिर उसमें जो फिश वगैरह है, मेढक है, फ्रॉग है, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर लाइफ गेट्स, है ना, डैमेज्ड, और दे आर नॉट फीलिंग वेल इन सच वाटर. सो खैर अदर POP देखो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे वाइट पाउडर होता है. ये इस वाइट पाउडर में अगर पानी मिला दो तो ये सेट होकर के हार्ड रॉक की तरह पत्थर जैसा खड़ा हो जाता है. आपने देखा होगा, जिस आदमी को ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंडेज लगा है ना, उसका हाथ ऐसे ठोक के देखना. सर व्हाइट सीमेंट होता है क्या? इट्स नॉट अ सीमेंट बेटा, सीमेंट सर यस सर बहुत कड़क होता है, बहुत खड़ा होता है, बहुत हार्ड रॉक की तरह हार्ड हो जाता है ये सेट होने के बाद. जब पानी सर मुस्कान को भी शायद यही लगा होगा, उसे एक बार प्लास्टर हो गया था तो उसे भी यही लगा था, उसका हाथ बहुत कड़क लग रहा था. हाँ, वो अंदर सपोर्ट देने के लिए होता है. ऊपर से कड़क रहेगा ना तो अंदर की जो हड्डी होती है वो हिलेगी डुलेगी नहीं, है ना. सो प्लास्टर ऑफ निकालते कैसे होंगे? पाउडरी सब्सटेंस which immediately sets to a hard mass on adding water.
पानी मिलाते ही तुरंत वो हार्ड हो जाता है, बहुत सर ही ये वाला रोज मेरी मम्मी ने बनाया है। निकालते हैं। हाँ बेटा, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस तो मिलता है मार्केट में भी। नाउ रिमेंबर व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक्चुअली इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2, है ना, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। ये पहले जिप्सम होता है, जिप्सम से बनाते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम एक मिनरल है बेटा, जो हम जमीन मिट्टी खोदते हैं तो अंदर से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, उसमें होता है जिप्सम, राइट। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल वाटर का होता है, तो जिप्सम है, उसको उसी से रिकवर करते हैं। वी टेक आउट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो कैन यू गेट रिवर्स दिस चेंज? Sir, this is irreversible change. We cannot reverse good. it. We cannot get back plaster of Paris, right beta? So next, है ना, आई एम गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेज। मैं लिस्ट दे रहा हूँ, आपको क्लासिफाई करना है। पेंसिल ले लो, है ना, और सिर्फ नंबर दो कॉलम बना लो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, और सिर्फ नंबर लिखते जाओ। रिवर्सिबल में 1 2 3 4 कौन कौन होगा वो लिख डालो, एंड इरिवर्सिबल में कौन कौन होगा उसको लिख डालो। डू इट, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। Classify the following as reversible or irreversible changes. Growth of a plant, सर कर लिया। plowing a सर field। वो अच्छा, इरिवर्सिबल है। मीनिंग नहीं समझ, पूछो मीनिंग किसी अगर पता नहीं है तो पूछ लो बेटा, क्योंकि दिक्कत आती है बच्चों को। प्लाउइंग अ फील्ड समझते हो? प्लाउ मतलब जोतना। हाँ, खेत को जोतना, मिट्टी को उल्टा पलटा करते हैं, हल चलाते हैं उसमें। प्लाउइंग अ फील्ड। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, पुलिंग ऑफ रबर फॉलिंग स्ट्रिंग ऑफ क्या होगा? रेन, पुलिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, रबर बैंड। स्ट्रिंग मतलब धागा बोलते हैं, थ्रेड को बोलते हैं। रबर थ्रेड को पुल किया, ऐसे खींचा। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड है, उसको हथौड़ी मार दिया, टूट गया वो। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना। तो आपने मिलाया, नाउ मैच करो आंसर से। ये देखो, हे द आंसर। रिवर्सिबल चेंजेज आर, चेंज नंबर 2 इज रिवर्सिबल, प्लॉइंग ऑफ अ फील्ड, है ना, मिट्टी जोतेंगे, मिट्टी लूज हो जाएगी। सर मेरे सारे सही हैं। ठीक है, थर्ड वन सर आपने 2 लिख दिया है। यहाँ पर थर्ड छूट गया बेटा, यहाँ पर थर्ड नंबर लिखना भूल गया मैं। सर मेरे सारे सही निकले। थर्ड वन है एक्चुअली, तो बाहर निकलना पड़ेगा। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड एक्चुअली है। थर्ड वन, third one, okay, from current slide, yeah. So answer is your second, third and fifth one. Pulling a rubber band को खींचोगे वापस आ जाएगा रबर बैंड में, बट इरिवर्स है फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। फर्स्ट वन ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, सही निकले हैं। वेरी गुड, है ना। सो वी कैन प्रैक्टिस मोर नाउ। सर मेरे भी सारे सही निकले। आई एम गोइंग टू शो सर यू। इसे नोट्स में बना सकते हैं। यस बेटा। नेक्स्ट वन यू सी, आई एम शोइंग योर बुक, है ना, साइंस बुक। साइंस बुक देखो बेटा, हियर इज ए लिस्ट। आपको यस नो लिखना है। चेंज कैन बी रिवर्स, देन यस, इफ कैन नॉट बी रिवर्स दैट इज इरिवर्सिबल, तो नो लिखना। तो आप इसको भी करो, आप बताते जाना। रॉ एग टू बॉइल्ड एग, सर पुरानी बुक में लिखा हुआ है हाँ पहले लिखते से। जाना। हाँ, मिटा दो उसको आप। नो। बैटर टू इडली, बैटर बोलते हैं, इडली का पाउडर में जाके पानी मिला के छोड़ देते हैं तो उसको बैटर बोलते हैं। फिर उसको फ्रेम में डाल के मम्मी कुक करती हैं तो इडली बन जाता है। कैन इट बी रिवर्स्ड? वापस इडली से बैटर मिलेगा? नो। चावल, दाल और उसमें बेकिंग पाउडर, नमक मिला करके थोड़ी देर छोड़ते हैं, रात भर ओवरनाइट छोड़ते हैं, देन मॉर्निंग में इडली बनाते हैं। नो। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, यस। वुलन yarn to knitted sweater, नो। वुलन yarn है, धागा है ऊन का, उससे स्वेटर बना दिया बुन करके, वापस खींचेंगे तो वापस ऊन निकल आएगा। यस सर। यस यस सर। नेक्स्ट, ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अनाज से उसका आटा बना दिया।
वापस वापस अनाज बनेगा? नो सर। नो सर। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडा दूध है उससे गर्म दूध हो गया, उबाला नहीं, उबाला हुआ दूध ठंडा था, ठंडे को फिर वापस गर्म किया तो ठंडा हो सकता है, वापस होगा ना? यस सर। यस सर। Yes. है ना? ये मतलब रॉ मिल्क नहीं लिखा हुआ है, रॉ मतलब कच्चा दूध हुआ, रॉ टू बॉइल्ड मिल्क होगा, दैट कैन नॉट बी डन बेटा। रॉ मिल्क को उबाल देंगे तो बॉइल्ड मिल्क हो जाएगा, बट बॉइल्ड मिल्क से रॉ मिल्क नहीं मिलेगा। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडा दूध गर्म कर दे, गर्म दूध ठंडा कर सकते हैं। यस सर। कॉइल स्ट्रिंग, यस सर। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल स्ट्रिंग, यस यस सर। सर। एक सीधा धागा है उसको गोल गोल कॉइल से बना दिया है ना, तो इसको और अच्छे से देख यस के सर आना कर आपको। सकते हैं। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फ्रॉम हियर, ओके? तो टाइम इट इज चेंज, सो सर 240। हाँ बेटा, सर 2:40 PM। या so let me stop presenting, right? Now let's do सर Shanti may we part. leave the meeting? Do Shanti part, then we can discuss if anything. Raise your hands. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram, साईराम सर। Sai Ram beta. साईं राम।